السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. ناظرین آج اس ہفتے کا آخری شو ہے، سنڈے شو ہے یہ. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اس لیے میں چند باتیں یہ کرنی چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے اور جیسے جیسے واقعات ہو رہے ہیں، جیسے اس ہفتے آئے تھے تو یہ لاہور والا واقعہ ہوا تھا، اور اب بھی سننے میں یہ افواہیں مل رہی ہیں کہ اللہ معاف کرے تھریٹ ہیں مختلف جگہوں پہ. میرا خیال ہے کہ ایجی بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ اگر اکٹھے مل جل کے اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقے اور گلیوں میں یہ دھیان رکھنا شروع کر دیں کہ کون بندہ ہے جو ادھر رہ رہا ہے اور کون بندہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے اور وہ روزانہ اس گھر میں آتا ہے، تو میرا خیال ہے کافی کام ٹھیک ہو سکتا ہے. ویسے تو ہمارے ادارے لگے ہی ہوئے ہیں تڑا تڑ اس کام کے اوپر اللہ کے فضل سے، اور کئی جانیں قربان کر چکے ہیں، مگر میرا خیال ہے پوری عوام جب تک مل کے ایک ساتھ زندگی نہ گزارے گی تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، لمبا ہوتا جائے گا. اس لیے اکٹھے رل مل کے زندگی گزارے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے. کلے کلے زندگی گزار رہے ہیں نا، اپنے اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے، اس لیے مشکلیں آ رہی ہیں. ہمارا تو اس بندے والا حال ہو گیا ہوا ہے جو جنگل میں جا رہا تھا نا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو رستہ بیچارہ کھو گیا، گواچ گیا رستہ، اسے سمجھ نہ آئے کہ جانا کدھر ہے. جب اک گیا پھر کے تو اپنے پتر کو کہتا ہے کہ تم کیوں میرے نال کھجل ہون ڈیا، میں تو رستہ بھول گیا ہوں، تم تو گھر جاؤ. لو بندہ پوچھے بھائی تمہیں اگر رستہ نہیں مل رہا تو اس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ اگر اس کو پتا ہے گھر کدھر کو جانے تو وہ تمہیں بھی نہ ساتھ لے جائے. اس لیے میرا خیال ہے مل جل کے زندگی گزارنا جو ہے نا جی، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ دہشت گردی پہ بہت زیادہ ہم قابو پا سکتے ہیں. پلیز عزیزی کی گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، گلیوں میں ضرور ادھر ادھر ہر گھر کا دھیان رکھیں کہ کون ادھر رہ رہا ہے اور کس کو ہم نہیں جانتے اور وہ روز ادھر آتا ہے. جی یہ ہم لوگ نا اصل میں مسائل سے نکلنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے. ایک مسئلے سے ہم نکلتے ہیں تو دوسرے مسئلے میں ہم خود ہی شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسئلے میں سے نکل گئے ہیں، اور دوبارہ اپنی ہی کسی حرکت سے پھر دوبارہ اسی مسئلے میں پھنس چکے ہوتے ہیں. جس طرح کے بندے بیچارے کی سم تھی نا اس کے پاس ٹیلی فون کی، تو اسے کو بندہ بڑا تنگ کرے، روز میسج غلط اسے بدتمیزیاں اور اس کو فون اور کالیں اور ادھی رات کو مس بیلیں. اس بندے کی جان بیچاری کی شکنجے میں آئی ہوئی تھی. اس نے غصے میں اٹھ کے سویرے سم بدل لی، نئی سم لے لی، نیا نمبر، پچھلا نمبر ہی بند کرا دیا. نیا نمبر لے کے تو اسی بندے کو میسج کر کے کہتا ہے کہ پتر ہوں میں سم بدل لی ہوں کر ہمیں بھائی نوی سم سے بھی پھر اسے میسج کر کے اس کو نمبر دے دیا. امان سے ہمارا بالکل یہ حساب ہوا ہے. اپنی طرف سے ہم پرابلم میں سے نکل چکے ہوتے ہیں اور دوبارہ اپنی ہی کسی حرکت سے پھر پھنس جاتے ہیں. دشمن کو ہمیشہ اپنی نئی سم کا نمبر بھی بتا دیتے ہیں. اس سے نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت سے رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بزرگوں کو. آمین. سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ گورنر ہی رہتا ہے، سابق ہو یا موجودہ، میں اب بھی گورنر ہی ہوں. لطیف کھوسا صاحب نے ہمیشہ ایسی لطیف بات کی ہے کہ بندے کو کھوسا چڑھ جاتا ہے. نہیں واقعی میے کی بات کرتی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی بھی گورنر ہوں. حالانکہ جب تھے نا اس وقت بھی جب کوئی گورنر ہاؤس آتا تھا نا تو ٹلی بھی جا کے اگر کھوسا صاحب نکلے ہیں تو ان سے ہی کہہ دیتا تھا کہ بیٹا ذرا اندر گورنر صاحب نے بلائی کری. سمارٹ آدمی ہے نا یار، آپ بھی لڑکے لگتے ہیں سمجھا کرو. لڑکے کیا بالکل بچے لگتے ہیں. ہیلو یار سمارٹ آدمی کو بھی تم کیوں اس طرح کی بات؟ تمہیں دیکھا نہیں تھا کہ کرکٹ کیسا کھیلا تھا؟ شاٹ لگا کے گیند کو تو وکٹ کا معائنہ کرنا شروع کر دیا تھا. عجیب ہے ویسے زندہ دل آدمی کھوسا صاحب. کھوسا صاحب حضور آپ گورنری سے ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو سیٹ خالی ہے نا آج کل
اس کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں کہ یار جنی دیر نواں نہیں لبدا مینوں ہی سمجھو پھر گورنر. مگر کھوسا انکل اب یہ نہیں ہو سکتا جناب, آپ سابق گورنر ہو چکے ہیں. ایک گورنر اور ایک شوہر سابق ہو جائے نا جی تو دوبارہ سیٹ پہ آنے کے لیے بڑا لمبا پروسیجر ہے. بھول جائیں حضور اب آپ گورنری کو. اصل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسری جنگ عظیم لڑ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو مٹی کا تیل لینے چاہیں تو کریانے والے کے ساتھ گفتگو میں دوسری جنگ عظیم سنا رہے ہوتے ہیں. جب دوسری جنگ عظیم میں لڑ رہا تھا نا اس وقت ہم کھچروں پہ مٹی کا تیل لے کے جایا کرتے, اور اس وقت مٹی کا تیل ریت کا تیل ہوا کرتا. ہاں اللہ تیری خیر کر یار, تو بھی لڑی ہے دوسری جنگ عظیم. ماں کی دال خرید کے بحث شروع کر دیتے. یار دوسری جنگ عظیم میں تو ماں کی دال سے دیواریں بڑھتی تھی, اس وقت اتنی مہنگی نہیں تھی, تم نے کیوں اتنا ریٹ لگا لیا. اب بھی کہہ دو اس وقت ماں کی دال پیو کی دال ہوتی تھی. وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 2017 کے آخر تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اچھا جی خواجہ جی, اللہ آپ کو زندگی سے تندرستی دے حضور. اللہ کرے آپ کی منہ سے جو بات نکلی ہے یہ اللہ کی طرف سے پوری ہو جائے, ورنہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں اب اس پہ کر سکتا. ویسے یار ہمارے حکمران کی ڈیڈ لائنز دینے سے کیوں نہیں باز آتا؟ نہیں مزے کی بات تو تم دیکھو نا, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ اللہ کے فضل سے اب تاریخ ہی وہ دیتی ہیں جو ان کی حکومت کے بعد کی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ 2017 کے اخیر پہ بجلی آئے گی. ان کو یہ ہے کہ آپ پہ جڑا حوصلے گدی تے بیٹھائے گا صاحب دے دے گا سانوں کی. وہ جس طرح کسی نے رشتہ نہ کرنا ہو تو آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ اور کڑی پہ MBBS کر دیے 5 سال بعد ایسا ویاڑی. وہ منڈا کہیں اور ویاہ لیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں کی کڑی نے تو FSC بھی نہیں سی کی تھی جنہیں نہ کر چڈی سی رشتے. تو خواجہ صاحب آپ کی ان باتوں سے میں پہلے اپنا UPS بیچ چکا ہوں. پہلے بھی اسی طرح کی کو بات کی, میں نے UPS بیچ دیا. میں نے کہا خواجہ صاحب ماشاءاللہ چٹے والوں والے بندے ہیں, آ جائے گی بتی. بعد میں نہیں آئی. پھر UPS جتنے کا پرانا بیچا ہوا تھا اس میں سے ڈبل پیسے ڈال کے پھر نما لیا. نہ 32 نہ 33 نہ 34 نہ 35 کھ میں نہیں آیا. ایک دعوت ولیمہ میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی جیب کٹ گئی. ماسد کے جائے اب سراج الحق صاحب کو نئی تسبیح اور مسواک لینی پڑی ہوگی. ارے ان کی جیب کٹی ہے تو اور ان کی جیب میں سے کینیڈین ڈالر نکل رہے ہیں. سراج الحق صاحب کی جیب کٹی ہے امیر جماعت اسلامی کی. ان کا کل سرمایہ یہی ہوتا ہے, ایک تسبیح ایڈی کو مسواک. اور اگر مہینے کے شروع والے دن ہو تو ساتھ پانی کا بل بھی نکل آتا ہے. چور کو واپس الٹا وہ جمع کرانا پڑتا ہے. جا تیرا بیڑا تر جائے چورا. دسو یار سراج الحق صاحب کی جیب کٹ لی ہے, تو زرداری صاحب کی کٹ لے, تینوں یہ نہیں شوق ہے. آپ کے مرشد کی خبر ہے. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, صدقے جاؤں. میرے مرشد آئے, پہلے سن تو لیں. ہاں کیا کہتے ہیں میرے مرشد؟ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات میں میدان خالی نہیں چھوڑے گی. بالکل ٹھیک ہے مرشد, پائپ لا کے پانی چھڑ دیو, میدان دیو. الیکشن لڑیں گے یار الیکشن بندیاں نہ لڑی دا, کوئی کوکڑ لڑا کے نہیں الیکشن لڑی دا. ان کے پاس نہیں بندے, ان کو کوئی مشورہ تو دینے. مرشد کیا پتہ کیا کریں, میدان میں سائیکل سٹینڈ بنوا دیں اور ٹھیکہ مجھے دلوا دیں, آپ کی بڑی مہربانی. میدان نہ خالی چھوڑے, اس میدان میں کچھ نہ پنگوڑے بھی لگوا سکتے ہیں آپ. سی صاحب مرشد پاک سے بات کر رہے ہیں. میں صدقے جاؤں, میں تم نے میرا سا بند کرانا ہے. یہ یار دیکھو مرشد میرے کو غصہ چڑھا رہی ہے. آج جس سے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں. جی آپ کی ایک اور محبوب شخصیت ملکہ برطانیہ کینیڈین ایمبیسی کی بلڈنگ کے افتتاح پر جاتے ہوئے ٹرافلگر اسکوائر ٹریفک جام میں بری طرح پھنس گئیں. کہتی رہی ہوں فلپو سے کہیں چھری علی نہر لمبالا گڈی ادھر نہ جا, شباز شریف دا روٹ لگا. وارڈن اترے پھر نہیں لنگن دیں دے. وہ آنجے نے ماں جی تو آنو ویکھیے کہ CM نو ویکھیے. میں کیا اتری ہو CM دا روٹ لگا ہوئے تو میں نو ملکہ تو سیدھا ماں جی بنا رہی. میں بھی ملکہ ہاں, میرا بھی کچھ خیال کرو. فلپو تے غصہ چڑھ گیا, فلپو نے تھلے اتر آیا. اچھا
वार्डन ने एक रखी तो नाम रात 5-6 रल के फिल्पू नूं कुट्टन लगे फटा शीशा थले करके फिल्पू नूं क्या फिल्पू कम ऑन फिल्पू नस के गड्डी च आया तो उतरे मगर आए ने ओदे मैं क्या वे स्टॉप आई एम क्वीन अच्छा अगो कहंदा पहले भी एक माई लंगी हो ये हुई कहन दई डंडा उतरिया मैं थले उतर के फड़ लेना तेनू ते कुटना शुरू कर देना मैं हुणे इत्थे भुब्बू वज जाने ने तू मैनू जानदा नहीं फिल्पू आंदा ना लड़ गई मेरे मुक्का मारिया इस फुन्ने ते मैं फिर अपना साड़ी दा पल्लू फूक मार के गरम करके ते ओदा खुन्ना सेकिया मैं कहा तेनू आंदी संग तू घर रहो मैं मेट्रो ते टुर जानी कलियां भी मैनू जान देंदा अच्छा ये उतरियां नूहां मेरियां ने डरा छड्डे है ओनू नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पा जुनैद ये जो एक रौला पड़ा हुआ है प्रिंट मीडिया पे भी और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी के इख्तलाफात पाए जा रहे हैं बाप बेटे में, आसिफ अली यरदारी साहब में और बिलावल भुट्टो यरदारी साहब में। ये बाकी ठीक बात है या वैसी हमें रौनक मेला ही लगाया हुआ है? कोई कहते हैं कि हमें जान के ड्रामा हो रहा है। ये जो ड्रामा करार देते थे ना बाप बेटे की लड़ाई को, मेरा ख्याल उसमें इतना दम खम नहीं रहा। और मेरा अगर इसको ड्रामा करार देने वालों में दो तरह के लोग शामिल थे। एक तो वो बेचारे पीपल्स पार्टी के लीडर थे जो ये फेस सेविंग के लिए कहते थे, उन्हें जी नहीं कोई बात नहीं है, बाप बेटा है, कुछ नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो ऑल टुगेदर इख्तलाफात से ही इनकार करते थे, वो कहते थे कि कोई बात ही नहीं है। अच्छा। और एक वो लोग भी थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है या जिनमें से गालिब अक्सरियत का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, वो इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश करते थे। वो ये कहते थे कि ये ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है कि बिलावल जरदारी को आसिफ जरदारी साहब से बिल्कुल डिस एसोसिएट करके उनका एक बिल्कुल नया इमेज पेश किया जाए। खुदा ना खास्ता यरदारी साहब पे इल्जामात हैं तो उनको परे कर दिया जाए जी कि ये उन इल्जामात की वजह से बिलावल साहब यानी बिलावल साहब की पहले नाराजगी इसलिए पेश की जाए लोगों के सामने कि जनाब बिलावल जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनसे नाला हैं, वो करप्शन के इल्जामात पर परेशान है, सिंध हुकूमत पर लगने वाले, वो एक नई अवामी पीपल्स पार्टी को जन्म देना चाहते हैं। इसलिए वो पीपल्स पार्टी को, जो नई पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल साहब के लिए जरूरी है कि वो जरदारी साहब के जो इमेज से उनकी जो छतर छाया है उससे बिल्कुल अलग होकर एक नई पीपल्स पार्टी बनाए। लेकिन मेरा ख्याल है बात लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट बताओ। हैं इख्तलाफात? हाँ, मेरा ख्याल इख्तलाफात हैं। वजह क्या है, स्टार्ट कहां से हुआ है? इसमें अगर जरा जायजा लो ना तो पाकिस्तान की सियासत इस तरह का जो लीडरशिप है इस तरह की वो अफोर्ड ही नहीं करती कि इख्तियार किसी एक के हाथ में हो और उसको एग्जीक्यूट कोई और कर रहा हो। जब भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस तरह का कोई तजर्बा किया गया वो ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। जिसके हाथ में अगर पावर नहीं होती और कोई दूसरा उसकी पावर इस्तेमाल कर रहा होता है, जब वो अपनी पावर इस्तेमाल करना शुरू करता है इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मतलब कई लोग कहते हैं कि जब सेनेट की एक सीट खाली हुई थी उस वक्त अब्दुल कादर पटेल को टिकट देना चाहते थे बिलावल, लेकिन जरदारी साहब कयूम सोमरो को देना चाहते थे टिकट, इससे इख्तलाफ शुरू हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 18 अक्टूबर को बिलावल ने कराची में तकरीर की थी ना, मेरा ख्याल है कि वो नुक्ता आगाज था। उसमें कई ऐसी बातें थी जिन्होंने कई कॉर्नर्स पे बेल बजा दी थी, खतरे की घंटी बजा दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने एमक्यूएम के बारे में बहुत हार्श ज़बान इस्तेमाल की थी, जिस पर गुमान ये है, कई लोग ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात की थी और अपने गुस्से का इजहार किया था बिलावल साहब के लबो लहजे पे। उसके बाद मतलब थोड़ा सा फिर उनको पुल आउट कर लिया गया था। जो उससे भी ज्यादा फिर उन्होंने कायम अली शाह के बारे में, मतलब उनके कोई जज्बात बिलावल के कोई ढके छुपे नहीं है, वो समझते हैं कि सिंध में बदतरीन करप्शन हो रही है और उसमें पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत शामिल है। अच्छा, इस वक्त जाहिर है जो पीपल्स पार्टी की जितनी लीडरशिप है वो सिंध में बैठी हुई है और किसी न किसी अंदाज में हुकूमत के मजे ले रही है। इसलिए वो सारे बहुत, यानी उस वक्त बिलावल साहब का जो तर्ज तखातुब था
उसको सुन के खासे परेशान हो गए थे। फिर इवन पंजाब में तुम्हें याद है उस वक्त उन्होंने 18 अक्टूबर को कराची में कहा था कि मैं 30 नवंबर को लाहौर में बताऊंगा कि शेर का शिकार कैसे किया जाता है। फिर वो 30 नवंबर आई, ना बिलावल साहब आए, वो आए ही नहीं, न तीरा न शेर। हाँ, और उनके भी वो यहाँ पे पंजाब में मंजूर भट्टू के तर्ज सियासत से शदीद नालाएं। अगर वो बाप से डिसएग्री करते हैं तो ये बरसियां वगैरह जब होती हैं बीबी शहीद की या भुट्टो साहब की, तो वहां पे तो वो बड़ा एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, वो बड़ा अदब और मोहब्बत पाई जाती है। वो एक वक्त था ना जब तक वो उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बिलावल, उस वक्त तक तो ये नजर आता था। उसके बाद जब तक खुद अब हिस्सा लेना शुरू किया है तो उन्होंने, यानी मेरी इत्तलात ये है कि जो 30 नवंबर को जब उन्होंने बताना था लाहौर में आके कि शेर का शिकार कैसे किया जाता है, उन्होंने सबसे जो पहला कदम था उनका, उन्होंने भट्टू साहब की छुट्टी करवा देनी थी, ये सूबाई सदर की। उसके बाद उन्होंने जितनी भी पंजाब में जितने भी जिले सदूर हैं इनकी छुट्टी करा के उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स बनाने थे यहाँ पे। अच्छा, तो वो जरदारी साहब इस बात को नापसंद कर रहे थे और फिर जरदारी साहब ने बहरहाल मना ही कर दिया, वो 30 नवंबर को आए नहीं। फिर यहाँ पे जब वो आए हैं, जरदारी साहब खुद आए हैं लाहौर में, तो कई मतलब एमपीएस ने, कई यहाँ पे जो बड़े सरगर्म जयाले हैं, उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में जरदारी साहब से कहा है कि हमारा बिलावल नहीं आया, जिस पे उन्होंने बड़ी नापसंदीदगी का और मतलब एक जिल्लाट के शिकार में उन्होंने कहा था कि ये मैंने फैसला करना है कि हमने बिलावल को किस तरह सियासत में लाना है, ये फैसला आपने नहीं करना। अच्छा, तो वहां से भी लोगों को शक पड़ना शुरू हो गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। नहीं तो अब किस नहज पे पहुंची हुई है ये? अब असल में ना कई तरह की फिर मतलब थ्योरीज काम कर रही हैं। एक तो ये भी है, कई लोग बिलावल साहब की सेहत के हवाले से भी मतलब बड़े स्ट्रांग किस्म के शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, सेहत मतलब एक तो वो उनके बारे में गुमान ये है कि वो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जेर इलाज है, और इस बात में इसमें काफी हद तक सदाकत भी है। अब आजकल वो हैं या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके बारे में मैंने भी तस्दीक की है मीडिया की खबरों की कि वो कुछ अरसे के लिए रिहैब सेंटर में जरूर रहे हैं। और मेरी इत्तला मजीद एक ये भी है कि उनके इलाज में एक पाकिस्तानी मुआलिज भी शामिल था। अच्छा यार पाजनेत, ये बिल्कुल ममासलत नहीं लगती उस वक्त से जब बेनजीर साहब आई थी, तो वो भी अपने अंदाज में अपनी लाइकिंग के लोगों को आगे लाना चाहती थी। तो नुसरत भुट्टो साहबा जो थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो पुराने लोगों को आगे करना चाह रही है। एग्जैक्टली, बड़ी जबरदस्त बात की है हमने, वही अंकल से छुटकारा हासिल करना चाहती है। और अब भी ये बिलावल साहब की और जरदारी साहब की जो चपकल अशाई है जो तुम बता रहे हो, ये तो वही मेरा ख्याल है दोहराया जा रहा है। और तर्ज सियासत भी देखो, असल में बिलावल को इस बात पर पूरा यकीन है कि अगर मैंने सरवाइव करना है पॉलिटिक्स में, तो मेरे लिए जो बीबी का तर्ज सियासत है, जो मैदान का तर्ज सियासत है, वो मुझे अपनाना होगा। मुझे मैदान की सियासत करनी है। जबकि जरदारी साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि वो मैदान की बजाय ड्राइंग रूम की सियासत के माहिर है, जोड़ तोड़ के माहिर है। इसीलिए वो पंजाब में भी भट्टू साहब को ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि बिलावल जो है वो भट्टू साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये बात मैदानी सियासत वाली जो है ना बिलावल साहब के साथ जो तुम बता रहे हो, बिल्कुल मानने में आती है। उनके खिताब से ही पता चलता है कि वो बीबी वाला मैदानी खिताब पूरा करते हैं। जबकि और फिर इनके इख्तलाफात जो थे वो अपनी पुप्पो फरियाल तालपुर साहिबा भी बिलावल साहब से इस बात का तकाजा करती थी कि वो बैठ के पॉलिटिक्स करें, जबकि बिलावल ने शुरू में इस बात को रिजेक्ट कर दिया था कि अगर आपने मुझसे इस तरह की सियासत करवानी है तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। नहीं तो शायद वो दोनों जो हैं बहन भाई जरदारी साहब और फरियाल साहबा, वो इसलिए ये कहते हैं कि बाहर सिक्योरिटी के मसाइल। हो सकता है उनकी सोच हो, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल की अपनी सोच है। वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी मां का तर्ज सियासत इख्तियार करना है, और बड़े दबंग लहजे में वो बात करना चाहते हैं। बल्कि बाज लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये जो जुल्फकार मिर्जा साहब, ये जो इतनी सख्त जबान बोल रहे हैं, मिर्जा साहब पर भी असल में बिलावल का हाथ है। वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अमीन फहीम साहब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सर बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मफामती मैसेज जो ट्वीट किए जा रहे हैं बिलावल की तरफ से, वो असल में बिलावल नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, और आज की इत्तला ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने बिलावल को फोन किया है
اور 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی میں آنے کی دعوت دی ہے. اوہو بہرحال چلو سیاست اپنی جگہ پہ اور ہمارا حسب حال بھی اپنی جگہ پہ اور میڈیا بھی اپنی جگہ پہ ہیں. تو باپ بیٹا اللہ پاک ان کو اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور براور صاحب اگر بیمار تھے یا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اپنے باپ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیصلہ آباد سے حسب ڈاک میں پہلی میل شامل کر رہی ہوں. لکھ رہے ہیں اجاز شیخ, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. جنید انکل, جب عزیزی انکل آپ کو ذرا موٹا ہونے پر چھیڑتے ہیں تو مائنڈ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا موٹے انسان نہیں ہوتے؟ اور آپ پریشان بھی نہ ہوا کریں, میری ویسٹ بھی 38 ہے. خدا نہ خاصا میری بھی نہ کبھی 32 سے 38 ہو جائے یار. ماشاءاللہ. آپ کیا کہیں گے عزیز صاحب؟ شیخ صاحب ہوں چنگے رہے ہو, اللہ معاف کرے. اس سے زیادہ چلاک پائی نہیں مجھے ٹکرا کبھی زندگی. سیریس کہہ رہا ہے کہ میری بھی کہیں 32 سے 38. نہیں واقعی میری, میں سیریس کہہ رہا ہوں, کئی دفعہ میری 32 ٹچ کر گئی ہے, 32 33 تک چلی گئی تھی. اچھا تو پھر اس کو ہٹوا دو. یہ جو آگے لگوایا ہوا ہے اس کو ہٹوا کے دکھاؤ نا 32. یہ میرے سیکورٹی میئرز ہے, اس کی یہ میں انسیکیور فیل کرتا ہوں. ٹیبل بلٹ پروف ہے اور صرف ٹانگوں کی حفاظت کی. میرے خیال ہے جرابیں مہنگی پہنی ہوئی ہیں. اچھا جی, شیخو پورا سے سرور بڑائچ لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی بڑائچ صاحب. عزیزی بھائی ایک بات بتائیے, وہ کیا چیز ہے جو شو میں آپ نے کبھی استعمال نہیں کی اور جنید بھائی روز استعمال کرتے ہیں؟ آپ لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے. روز استعمال کرتے ہیں اور اپنا آپ نہیں استعمال کرتے, وہ روز استعمال کرتے. عقل انہوں نے بھی لکھا کہ آپ یقیناً عقل سوچ رہے ہوں گے, حالانکہ ٹائی ہے. اب اچھے رہے ہو, بےزتی ہوگی. ان کے بھی یہ ہے کہ عقل تمہارے پاس بھی نہیں ہے. چلو میرے پاس بھی نہیں ہے, اس کا مطلب تمہارے پاس بھی نہیں ہے. پھر مجھے منظور ہے. آپ دونوں کی بات ہو رہی ہے. مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ مجھے تو وہ دانشور ڈکلیئر کر چکے ہیں. جیسے اننگ ڈکلیئر نہیں کرتے ختم, ایسے کر چکے ہیں. ہاں وہ تو نیٹ پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یو آر ٹو انٹیلیجنٹ. 3 بھی کہیں نے لکھا ہے. اچھا پھر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ مذاق ہے. اچھا جی, کراچی سے رانا کاشف لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام رانا صاحب. صاحب اور عزیزی صاحب, اب سارا میڈیا کرکٹ ٹیم کو برا بھلا کہہ رہا ہے. سارا سال کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ جو ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے اس کی کیا حالت ہے. اگر ایسا ہوتا تو حالات ایسے نہ ہوتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جب چگا بالکل سڑ جاتا ہے تو پھر ہم اٹھ کے دوڑ لگاتے ہیں. جب ہماری ٹانگوں کو سیک پہنچتا ہے یا جلتی ہیں, پہلے نہیں ہم دیکھتے یہ لال روشنی جو شروع ہوئی ہے آنی, یہ کدھر سے آ رہی ہے, خطرہ کہاں سے ہے. سارے طرف آپ دیکھیں نا, جس طرف کرکٹ ہی نہیں, ہر طرف ہماری یہی حالت ہے. جب بیڑے غرق ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ہوش آتی ہے اور ہم شور مچاتے ہیں. آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پہلے ہی پکڑنا چاہیے غلطی کہاں پہ ہے. اچھا جی, چکوال سے عصمت دکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, یہ بلی کو شیر کی خالہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر جانوروں میں آپس میں اور بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, اور کیا ان کے اندر بھی رشتہ داروں والے مسئلے ہوتے ہیں؟ میں نے سوچا یہ سوال میں آپ سے ہی پوچھوں کیونکہ یہ سب آپ کے فاسٹ فرینڈ ہیں. دیکھو جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کی ہمیں رشتہ داری میں بولتا نہیں. سنا تو یہی ہے, بلکہ ہمارے بزرگوں نے بھی یہی بتایا کہ بلی شیر کی خالہ ہی ہوتی ہے. رشتہ داریاں تو بتاؤ نا, چوہا اس کا ریچھ کا تایا ہے, کچھ تو بتاؤ. چوہا نہیں ہمیں ریچھ کا کچھ لگتا, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہاں البتہ چکچوندر جو ہوتی ہے نا, وہ ریچھ کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے. آگے سے اس کا منہ ہوتا ہے. ہاں اردو کو میں چھچوندر, یار انگلش
में उसे चकचूंदर कहते। खैर अभी तक तो अजमत साहब हमें इसी रिश्तेदारी का पता है, अगर किसी और की रिश्तेदारी का पता चलेगा तो आपको जरूर इतला करेंगे। वैसे अजमत साहब खैर है, कोई जंगल से रिश्ता है आपके लिए? नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के हाथों शिकस्त के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं पीसीबी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जनाब नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अगर आप गुफ्तगू के लिए चेयरमैन पीसीबी को बुलाते तो वो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि देखिए मैं तो एक कमेटी का चेयरमैन हूं और मैं यहाँ इसलिए भी आ गया, आप लोग मेरे मीडिया के लोग हैं और मेरा आपसे एक ताल्लुक है, मगर मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अच्छी बात ये होती कि अगर पीसीबी के चेयरमैन यहाँ आते और वो आके आपको क्रिकेट के बारे में। साहब, आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्ट है कि आप अभी भी चेयरमैन से ज्यादा बाइख्तियार है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरा ख्याल है ये लग रहा होगा आपको, वरना ऐसा मैं एक आम सा मेंबर हूं और 10 मेंबर होते हैं और मैं 10 मेंबरों में हूं और उन 10 लोगों में से एक आदमी हूं, एक मामूली कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं, बिल्कुल बेइख्तियार है, बिल्कुल नहीं। आप छोड़ क्यों नहीं देते? मैं छोड़ना चाहता हूं, आप देखें मैंने तो पीसीबी का चेयरमैनशिप का भी ओहदा छोड़ दिया। जैसे कल लोगों ने पुतले जलाए कि मैंने क्यों ये ओहदा छोड़ा और क्यों मैंने का जनाजा भी निकला, आपके पुतले साड़े। जी जी, बेशुमार जगहों पे लोगों ने मेरे पुतले जलाए हैं सिर्फ इसलिए कि नजम सेठी ने ये क्यों पीसीबी चेयरमैनशिप छोड़ी। तो मैं समझता हूं कि अब हर चीज तो मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने दूसरे काम भी करने हैं। मैं आपको अपने ओहदे छोड़ने का इतना क्यों शौक है? आपने निगरान वजारत आला भी छोड़ दी, आप लेना ही नहीं चाहते थे, फिर आप चेयरमैनशिप भी छोड़ दी, वो भी आप लेना ही नहीं चाहते थे। आपको लोग जबरदस्ती जिम्मेदारियां देते हैं लेकिन आप अपनी जान छुड़ाते हैं, आपका ऐसा मिजाज क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा आदमी वो होता है जो छोड़ता है, लंबी छोड़ता है। ये बच्चा जो है ये मेरे साथ ही आया था, ये पहले मैं इनका तारुफ करवा दूं, ये एक नौजवान क्रिकेटर है जिनका मौकफ ये है कि इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके पास कोई सिफारिश नहीं है और मेरिट पर ये टीम में आते हैं लेकिन इनको नहीं लिया गया। सर, इनकी नजर में मैं नाहल हूं, जो लेकर गए वो कौन से लायक थे? वो भी तो नाहल है, क्या कुछ किया उन्होंने? देखिए पहली बात तो ये है कि इस दफा कहीं किसी जगह भी सिफारिश नहीं चली। अच्छा, 90% लोग जो हैं वो ये मानते हैं और कहते हैं कि जो सिलेक्शन हुई है वो मेरिट पे हुई है। कौन से मेरिट की बात कर रहे हैं? ये पिछले फर्स्ट क्लास मैचेस में मेरी 5 सेंचुरियां हैं, 8 विकेटें हैं और जिन लोगों ने ना 50 की, जिनको हर गेंदों पे चौके पड़े, उन्हें आप ले गए सिर्फ इसलिए कि ना मेरा मामा है, ना कोई चाचा, ना कोई ताया जिसको कोई ओहदे पे कोई फायदा हो या उसके कोई सिफारिश हो, इसलिए नहीं लेकर गए मुझे आप। देखिए, इस तरह की बातें करने वाले लोग तो आपको अक्सर मिल जाएंगे। मुझे एक ऐसा लड़का भी मिला है जिसने मुझे कहा कि मेरा ना अम्मा है ना अब्बा है, मैं तजर्बे से बना हूं और मैं खिलाड़ी हूं। अब इन सारी चीजों को देखना है और इन बातों को सुनना है। मगर मेरा ये बड़ा खूबसूरत बॉलर है ये हाँ जी सर, इन स्विंगर क्योंकि हाथ टूटा हुआ, खुद स्विंग होती है गेंद। तो अगर हाथ टूटा हुआ है तो आप क्यों इस काम में हाथ दे रहे हैं? आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुने, ये सिलेक्शन करना जो है ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, मेरा काम नहीं है। अच्छा, आपका काम नहीं है? नहीं, आप सजेस्ट भी नहीं करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। देखिए, एक काम जो मैंने छोड़ दिया है, मुझसे उस बारे में सवाल करना मेरा ख्याल है ज्यादती है। मैं तो वहां सिर्फ जाता हूं इसलिए कि वहां पे जरा दरख्त लगे हुए हैं तो मैं हवा लेके वहां से आ जाता हूं। वहां जो चेयरमैन अब बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका? मैं शहरयार साहब, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था, वो आ गए उधर और अब वो चेयरमैन है। अब आप उनसे पूछें कि ये क्या हुआ है, मैच क्यों हारे हैं, इनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई भाई साहब की? आप क्या वहां पे पाइप फिटर जाना चाहते थे? एज ए क्रिकेटर सर, बहुत खूबसूरत बॉलर है जी सर। हाँ जी, अच्छा, खूबसूरत बॉल खूबसूरत कराती हैं या खुद खूबसूरत है? खूबसूरत है।
अच्छा, ये खुद भी खूबसूरत हैं। आप क्या समझते हैं कि जो चीफ सेलेक्टर है मोइन खान वो अंधा है? क्यों? ये जिस तरह के खूबसूरत हैं, लाजमन फिर इनकी बॉल भी उसी तरह की खूबसूरत होगी। तो वैसे भी ये बच्चा जो है, ये तो यही नहीं पता चल रहा कि ये बैठा हुआ है या खड़ा है। इसका तो कद ही क्रिकेटर वाला नहीं है, इसको क्यों रख लिया जाए जी? अच्छा, मेरा कद अगर छोटा है तो वो जो 7 फुटा मोहम्मद इरफान है उसने क्या कर लिया? हाँ, ये मुझे यकीन था कि ये उसकी बात करेंगे। मोहम्मद इरफान का भी एक मसला है। क्या? वो ज्यादा लंबा है और इतना लंबा है कि जब वो दौड़ रहा होता है तो ज़हन का जो एक राब्ता होता है जिस्म के साथ, वो चूंकि फासला बहुत बढ़ जाता है, इसलिए घुटनों के नीचे नीचे उसका राब्ता कट जाता है दिमाग से। उसको फिर पता नहीं चलता मैं किधर जा रहा हूँ। तो इसलिए वो दिमाग के ऊपर ऊपर से ही गेंद करवा देता है, पांव तक उसका पता नहीं होता कि मैं क्या करूं। वैसे चले बॉलिंग तो छोड़ेंगे, बैट्समैन भी बहुत कमाल का है। ये वाले? हाँ जी सर। ये बल्ले से बड़े हैं या छोटे हैं? दुनिया में जितने भी टॉप क्लास बैट्समैन हुए हैं वो मेरे कद के हुए हैं। गवास्कर, तेंदुलकर, ये कैसे कैसे बैट्समैन हुए हैं छोटे कद वाले? ब्रायन लारा, हनीफ मोहम्मद साहब। एग्जैक्टली। बेटा, मुझे किस लिए इन सारों के कद बता रहे हो? मैं इंटरव्यू देने आया हूँ या नाप लेने आया हूँ? मेरा क्या ताल्लुक है इन लोगों से? मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है सिलेक्शन से। अगर आपको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया तो मैं माफी चाहता हूं, आप उनसे एतराज कर सकते हैं। सेठी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके अंडर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे अंडर तो नहीं है। मेरे अंडर तो सिर्फ इस वक्त सोफा है। बोर्ड का मेरे साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी, मैं नहीं ये कहूंगा कि उन्होंने कोई गलत किया है, उन्होंने सोच समझ के ये टीम बनाई है। असल में होता यह है कि हम लोग जज्बाती हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। पहले मुझे लोग कहते थे कि आपने क्रिकेट खराब कर दिया जब मैंने ओहदा छोड़ दिया। अब मेरे पुतले जलाने शुरू हो गए कि आपने ओहदा क्यों छोड़ा है। आपसे कह दिया कि इसलिए पुतले जला रहे हैं कि आपने ओहदा छोड़ दिया था जी। ते होर उन्हां दा बाबा मेरी गड्डी च वज गया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सेठी साहब, चले मान लिया कि सिलेक्शन बराह रास्त आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मुल्क में जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना तो आपकी जिम्मेदारी थी ना? देखें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेहतर करने के लिए मेरा ख्याल है क्रिकेट की सारी तारीख में अगर उठा के देखें तो ऐसी बेहतरी, ऐसा काम, ऐसी मेहनत कभी किसी दौर में नहीं हुई जितनी हमारे दौर में हुई। अच्छा। मुझे जो चंद महीने मिले हैं ये एज चेयरमैन बोर्ड, उसमें मैंने, मेरा ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो बेहतर किया है। क्या? आप हैरान हो गए ये सुन के जुनैद के मैंने 40 डायरेक्टर बनाए हैं। किस काम के लिए? किस काम के लिए? उनकी आउटपुट क्या है? मलेच मंजियां ठोकन करेंगे। आप अजीब बात कर रहे हैं। क्या किया है? कि क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या बनाया। किया? उसमें मैंने एक डायरेक्टर बनाया है, डायरेक्टर शोल्डर। डायरेक्टर शोल्डर का क्या काम? वो चेयरमैन पीसीबी के शोल्डर दबाया करेगा। देखिए, एक बात याद रखें, जब तक इस मुल्क के अंदर, बल्कि यूं कहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर चेयरमैन पीसीबी की सेहत ठीक नहीं होगी और उसकी थकावट नहीं उतरेगी, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट तरक्की कर सकता है। उनको थकावट क्या होती है? सोच के मैं वही बताने लगा हूं। उसके लिए मैंने एक डायरेक्टर शोल्डर बनाया, एक डायरेक्टर नी बनाया, एक डायरेक्टर पिंडली बनाया, आई मीन डायरेक्टर काफ, फिर डायरेक्टर टखने भी है। तो ये 40 पार्ट्स जो होते हैं पीसीबी के चेयरमैन के, उनके लिए एक अलग अलग डायरेक्टर मैंने बनाया। सर, मुझे डायरेक्टर कड़ाका ही बना ले सर। क्या मतलब? मैं चेयरमैन की उंगलियों के कड़ाके निकालूंगा सर। और ये एक इंतहाई अहम जॉब है जो मुझसे मिस हुई है। तो आइंदा अगर कभी, अव्वल तो मैं इंटरेस्ट नहीं लेता अब चेयरमैन बोर्ड बनने के लिए, तो मैं मशवरा जरूर दूंगा इस चेयरमैन को कि डायरेक्टर कड़ाका भी होना चाहिए। बल्कि सेठ साहब, कड़ाका लेफ्ट और कड़ाका राइट होना चाहिए। तो ये भी अच्छी बात है। देखिए, क्रिकेट की बेहतरी डायरेक्टर के पे लिए आप आप 10 उंगलियों का वजन डाल रहे हैं, मुश्किल हो जाए। हाँ, ये आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है कि हाथ की अगर 10 उंगलियां हैं तो 10 डायरेक्टर
डायरेक्टर अगर बन जाएं तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के लिए और ज्यादा प्लीज आप ये एडमिट कर लें कि आपके दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर का पट्टा बैठ गया था। देखिए सर मेरी बात सर, मुझे तो रख ले सर, सर मुझे तो रख ले सर, सर मुझे तो क्रिकेट सर मेरा कुछ सर। एक मिनट ठहर भी जा, बाहर जुलूस निकले हैं मेरे खिलाफ, तेरे वापस नहीं वो आपके खिलाफ नहीं, वो आपके हक में ही है। वो यही कह रहे हैं कि आपने चेयरमैनशिप क्यों छोड़ दी। वो बड़े जज्बाती हुए हैं लोग इस बात पे कि मैंने क्यों छोड़ी चेयरमैनशिप। आपकी सिक्योरिटी तो अच्छी है, बड़ी मसला। आप टेंशन न लें, आप तशरीफ रखें प्लीज। अब क्या इन लोगों को बंदा किस तरह समझाए कि भाई इतने काम एक इंसान कैसे कर सकता है। पूरा मुल्क मरम्मत तो मुझसे नहीं करवाना चाहिए। जरा गौर से सुने, ये मुजाहिरीन कह रहे हैं कि मुल्क में क्रिकेट का बेड़ा गर्क आपने किया है। जी मुझे लगता है आपको भी डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। ये डायरेक्टर कड़ाका जो नई जॉब निकली है इस पे आपको ही रखना पड़ेगा। मुझे कोई शौक नहीं है डायरेक्टरशिप का। नहीं आपको बनाऊंगा मैं। नहीं मैंने नहीं बनना ना। क्यों नहीं बनना यार, क्यों नहीं बनना, क्यों नहीं बनना? मुझे नहीं बनना। नहीं मुझे नहीं बनना। बनाऊंगा मैं तो। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को छोड़ो। कोई रिश्तेदार, कोई भांजा भतीजा, कोई ऐसा जिसे क्रिकेट का शौक हो उसे क्रिकेट टीम में। क्रिकेट का शौक तो है लेकिन वो क्रिकेट में आना नहीं चाहते। वो यार आना क्यों नहीं चाहते, उनको समझाओ कि बड़ा पैसा है। वो क्रिकेट खेलते हैं, इतनी अच्छी नहीं खेलते ना। किसी को अगर बैट पकड़ना भी आता है तो मेरे हवाले करो, वो भी चला जाएगा। ये बाकी जो गए हुए हैं ये कौन सा होती है? मेरे किसी भाई को किसी को शौक नहीं। सर मुझे टीम में रख ले सर, मैं आपके कड़ाके भी निकाल दिया करूंगा। वो बेटा कड़ाके थे मेरे सारी कौम का डंडी हूं मैं सारे रख लवा। ये क्या हो गया? फिर वही बात है यार। सर सिक्योरिटी वाले हैं ना बाहर। सर ये बाहर कौन है? वो ही कड़ाके कड्ढने वाले। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।